Assalamualaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Human Physiology and Anatomy 2. Here's your lab instructor Nashita Alwas. Agenda of this experiment basically includes 6 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, conclusion, and the task assigned. The title of our today's experiment is to examine differences in the level of alpha rhythm activity during mental arithmetic and hyperventilation compared to the control condition of eyes closed and relaxed. Equipment needed for the experimentation are BioPack electrode lead set CESIS2L, BioPack disposable electrodes, 3 electrodes per subject for positive, negative and the ground lead of the EEG, BioPack electrode gel and abrasive pad to provide wetness to the disposable electrodes. Fourth point is basically the fourth equipment, which is the BioPack skin preparation gel or alcohol preparation to prepare the skin. This step is basically optional. Fifth is the Lycra swim cap to provide the basically stiffness of electrode towards the brain. And sixth step is basically the BioPack student lab system, which contains the BSL 4 software and MP36 hardware for data acquisition purpose. And the seventh step is the computer system, which contains Windows or Mac. Moving towards the theoretical background of this experiment, our today's experiment is basically consists of the EEG recording or EEG measurement. What is EEG? EEG stands for electroencephalogram, and an electroencephalogram is a test used to find problems related to electrical activity of the brain. Electrical activity of the brain को हम लोग EEG बोलते हैं. And EEG tracks and record brain waves pattern. जैसे जैसे वो वेव पैटर्न जो हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर या नीचे होते हैं, इट मीन्स कि आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा और कोई डिजीजेस जो हैं वो किसी भी सब्जेक्ट में हैं. Small metal disc with thin wires, which is basically the electrodes, are placed on the scalp of the subject. एंड सिग्नल्स जो हैं वो आपके कंप्यूटर को भेजे जाते हैं स्काल्प से, किसी भी ह्यूमन के इलेक्ट्रोड्स जिस पर लगे होते हैं वहां से सिग्नल्स जो है कंप्यूटर को भेजे जाते हैं ताकि आपका डेटा जो है वो रिकॉर्ड हो सके. नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन में आर रिकग्नाइजेबल पैटर्न. थ्रू एन EEG, doctors can look for abnormal patterns that indicate the different kind of neurological problems and others. Why it is done? Why ECG is done? ECG is basically done to diagnose and monitor the different kind of neurological problems and disorders and the sleep disorders. And EEG can also identify the causes of other problems such as the change in behavior. They are sometimes used to evaluate the brain activity after a severe head injury or before a heart transplant or liver transplant. इसमें हम लोग सबड्यूरल हेमाटोमा जो है उसको भी कंसीडर कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आपका ब्लड जो है वो कलेक्ट हो जाता है सबड्यूरल स्पेस जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर होती है उसके अंदर. और जितने भी आपके एपिलेप्सी वगैरह जो भी इश्यूज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनको देखने के लिए, उनको बेसिकली विजुलाइज करने के लिए भी, आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग EEG का एक्सपेरिमेंट और EEG का फिनोमेना जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. सो EEG हम लोग मेजर करते हैं तो उसके अंदर आपके पास 4 टाइप्स की वेव्स होती हैं: अल्फा वेव, बीटा वेव एंड डेल्टा वेव एंड द थीटा वेव. ओके, तो हम 1 बाय 1 अल्फा वेव, बीटा वेव, थीटा वेव और डेल्टा वेव को पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल सके कि उनके क्या पर्टिकुलर लेवल्स हैं
और अगर कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ह्यूमन जो है वो उन लेवल्स को क्रॉस करता है तो उन्हें किस टाइप के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो है अल्फा वेव। ठीक है, अल्फा वेव जो होती है वो बेसिकली उसमें फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है वो 7 हर्ट्ज टू 13 हर्ट्ज तक होती है और ये सिंक्रोनाइज वेव होती है। हमने लास्ट लैब में पढ़ा था कि ईईजी की जो वेव्स होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, सिंक्रोनाइज और डीसिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज वेव्स मींस रेगुलर और इनवेरिएंट वेव्स, जबकि डीसिंक्रोनाइज वेव्स जो होती हैं आपके पास वो इररेगुलर और वेरिएंट होती हैं। तो अल्फा वेव जो होती है वो सिंक्रोनाइज होती है, मींस ये रेगुलर होती है और इनवेरिएंट होती है। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी की रेंज 7 हर्ट्ज से 13 हर्ट्ज तक होती है और अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड जो है वो 50 माइक्रोवोल्ट तक होता है। अब हम इन वेव्स को कब एनालाइज करते हैं, ये हम करते हैं इनअटेंटिव ब्रेन ड्राउजीनेस की कंडीशन में या फिर हम लाइट स्लीप में हों तब हम इसको एनालाइज कर रहे होते हैं। अल्फा वेव कैन बी इंड्यूस्ड बाय क्लोजिंग one's eyes and relaxing, and they are rarely present during intense cognitive process like thinking, mental calculus and problem solving. मोस्टली एडल्ट्स के अंदर अल्फा वेव की जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की वो 9 to 11 हर्ट्ज तक होती है और ये पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी कर सकती हैं रेंजेस। सेकेंड वेव इज द बीटा वेव। बीटा वेव जो है वो फ्रीक्वेंसी रेंज उसकी होती है 14 हर्ट्ज टू अबाउट 30 हर्ट्ज और ये क्लोजली एसोसिएट कर रही होती है कॉन्शियसनेस से, अवेकनेस से, अटेंटिवनेस से, अलर्ट स्टेट से। इसमें हम लोग कोई मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी मेंटल टेंशन में होते हैं या अराउजल स्टेट जो है वो हमारी हो सकती है। अब इन वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो 5 to 10 माइक्रोवोल्ट तक होता है और ये लो एम्पलीट्यूड की जो है वेव्स होती हैं। बेसिकली एक्टिव कंसंट्रेशन से एसोसिएट करी हुई है और इसके अंदर हम बिजी होते हैं, एनेक्शियस स्टेट के अंदर हमारा माइंड होता है और ये जो वेव्स होती हैं ये डिसिंक्रोनाइज होती हैं, मींस ये इरेगुलर होती हैं और वेरिएंट होती हैं। थर्ड पर जो हमारे पास वेव्स आती हैं वो होती हैं थीटा वेव्स। थीटा वेव्स जो हैं उनकी रेंज होती है 4 हर्ट्ज टू 7 हर्ट्ज और इनका एम्पलीट्यूड होता है 10 माइक्रोवोल्ट। इसके अंदर आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी होती है, थीटा का जो रिदम होता है वो नॉर्मली ये एनालाइज की जा रही होती है यंग एडल्ट्स के अंदर, लाइक बिलो 5 इयर्स जो भी एडल्ट्स तो नहीं, बिलो 5 इयर्स जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर हम इनको एनालाइज कर रहे होते हैं और ये आपके पास जो है टेम्पोरल रीजन और हाइपर वेंटिलेशन का जो फिनोमेना है उसके अंदर जो है हम इनको देख रहे होते हैं। अभी हम आगे देखते हैं कि हाइपर वेंटिलेशन जो है वो बेसिकली क्या है और उसको हमने आज की लैब में स्टडी भी करना है। तो अदर इंडिविजुअल्स जो हैं जिनके अंदर हम लोग कभी थीटा एक्टिविटी देख सकते हैं, नॉर्मली ये होती चिल्ड्रंस में है लेकिन अगर चिल्ड्रन में होती है, लेकिन अगर हम लोग थीटा एक्टिविटी को किसी एडल्ट्स में देखें तो उनका जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो 30 मिलीवोल्ट से ग्रेटर हो सकता है। लास्ट वेव जो है ईईजी से जो एसोसिएट कर रही है वो होती है डेल्टा वेव। डेल्टा वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रेंज अप टू 4 हर्ट्ज होती है और ये इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें डोमिनेंट होती है। इसके अंदर हम लोग डीप स्टेजेस ऑफ स्लीप जो होती है ओल्डर सब्जेक्ट्स के अंदर, उनके अंदर हम लोग ये डेल्टा वेव्स जो है उनको देख रहे होते हैं। अगर हम इनकी कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी अभी हम देखा है वो होती है अप टू 4 हर्ट्ज, ओके, और एम्पलीट्यूड जो है वो इसका ग्रेटर होता है। हाई एम्पलीट्यूड वेव्स होती हैं तो बेसिकली लाई कर रहा होता है एम्पलीट्यूड 2 से 200 माइक्रोवोल्ट्स तक। इसके अंदर एडल्ट्स जो होते हैं वो वेकफुलनेस की कंडीशन में होते हैं, आई ओपनिंग की कंडीशन में होते हैं और इसको अगर हम एनहांस करें तो हाइपर वेंटिलेशन भी इसके अंदर आ सकता है। सो लैब को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हमने मेंटल अरिथमेटिक की कंडीशन को देखना है कि उस कंडीशन में अल्फा वेव जो है वो किस तरह से हमें नजर आती हैं और दूसरा हमने आफ्टर हाइपर वेंटिलेशन देखना है कि किस तरह से अल्फा वेव जो है वो प्रोमिनेंट होती हैं। तो बेसिकली अल्फा वेव्स जो होती हैं प्रोमिनेंट वो तब होती हैं
जब ह्यूमन जो है वो आईज क्लोज की सिचुएशन में होता है और रिलैक्स सिचुएशन के अंदर होता है। तो हम लोग अगर पहली कैटेगरी की बात करें जिसके अंदर मेंटल अरिथमेटिक आता है, तो इसके अंदर क्या होगा कि सब्जेक्ट या ह्यूमन जो होगा उसकी आईज क्लोज होंगी, ठीक है, और हम लोग रिलैक्सिंग सिचुएशन के अंदर होगा और हम जो है वर्बली उससे मैथ्स के प्रॉब्लम या कोई भी मेंटल जो जिसमें एबिलिटी उसकी इन्वॉल्व हो रही होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। आईज उसकी क्लोज होंगी, रिलैक्स सिचुएशन में होगा, लेकिन हम उससे मैथ्स के क्वेश्चंस या कोई इस तरह के वर्बल टाइप के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। इस कंडीशन में हमने मेंटल अरिथमेटिक को एनालाइज करना है। दूसरी सिचुएशन आती है आफ्टर हाइपर वेंटिलेशन। तो हाइपर वेंटिलेशन जो होती है वो ब्रीथिंग होती है एबनॉर्मली, क्विकली एंड डीपली, जो कॉज करती है गैस कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, जिसकी वजह से बेसिकली चेंज होती है गैस कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ड्यूरिंग हाइपर वेंटिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है, जिसके ब्लड फॉल का कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है उसमें पीएच लेवल जो है वो इंक्रीज होता है और ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये चीज जो है वो हाइपर वेंटिलेशन को इफेक्ट करी होती है, उससे एसोसिएट करी होती है। और जब हाइपर वेंटिलेशन से आपकी जो आप तेज मतलब ब्रीथिंग कर रहे हैं वो उसमें आपकी ब्रेन वेव की जो एक्टिविटी है वो भी इन्वॉल्व हो रही होती है। सो हाइपर वेंटिलेशन के अंदर ओवरऑल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन जो है वो इंक्रीज हो जाती है जब हम डीपली जो है वो ब्रीथिंग कर होते हैं, जिससे अल्फा रिदम का जो एम्पलीट्यूड है वो भी ज्यादा हो जाता है। और इसके अंदर जो है फीमेल में हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं, हाई मीन फ्रीक्वेंसीज होती हैं अल्फा वेव की ड्यूरिंग हाइपर वेंटिलेशन एज कंपेयर टू मेल्स। एंड मतलब हम ये कह सकते हैं कि अल्फा वेव की जो डिफरेंसेस हैं वो मेल में कम नजर आते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। फ्रीक्वेंसी may affect the speed of remembering during memory test and may be approximately 1 Hz higher for high scoring subjects than subjects who score lower. Amplitude tend to be higher in subjects who are more outgoing and extroverted. Amplitude vary with the difficulty of mental task performed with eyes closed. Okay? तो हम लोग के पास जब आइज क्लोज में हम मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म करा रहे हैं तो उसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, डिपेंड करता है इस चीज पे कि किस टाइप का हम प्रॉब्लम जो किस टाइप की एक्टिविटी जो है वो हम सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्फा वेव जो डिक्रीज हो जाती है जैसे ही सब्जेक्ट जो है वो अपनी आई को ओपन करता है और अटेंटिव सिचुएशन के अंदर आता है। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली है टू एग्जामिन डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ अल्फा रिदम एक्टिविटी ड्यूरिंग मेंटल अरिथमेटिक एंड हाइपर वेंटिलेशन कंपेयर टू द कंट्रोल कंडीशन ऑफ आईज क्लोज एंड रिलैक्स्ड। ओके, सो इसके लिए हम लोग को जो इक्विपमेंट चाहिए होगा वो बेसिकली बायोपैक कंपनी का है। बायोपैक कंपनी का हमें सबसे पहले एक सेंसर चाहिए होगा जो कि ईईजी सेंसर है। ठीक है, ये ईईजी सेंसर मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसकी 3 लीड्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ओके, और ये सेंसर जो है मैंने अटैच किया हुआ है अपनी डाटा एक्विजिशन डिवाइस से। इस सेंसर का नाम है SS2LB और ये ईईजी सेंसर है। अब इस डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो ये डाटा एक्विजिशन डिवाइस है जो कि आपके एनालॉग डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट कर रही है और फर्दर उसकी प्रोसेसिंग कर रही है ताकि हम उसको कंप्यूटर पर जाकर एनालाइज कर सकें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास चैनल्स अवेलेबल हैं, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, 4 चैनल्स अवेलेबल हैं। मीन्स हम इसमें 4 सेंसर्स जो है वो अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इसकी बैक साइड पर अगर आप आ जाएं तो एक तो आपके पास अवेलेबल है डीसी इनपुट का एक पिन जिससे आप डीसी इनपुट लेते हैं, एक आपके पास फ्यूज अवेलेबल है, एक पावर बटन है। इसको मैं ऑन करूंगी तो मेरा ये जो MP36 की डिवाइस है ये ऑन होगी। जब तक मैं इसको ऑन नहीं करूंगी तब तक मेरी ये जो डिवाइस है ये ऑन नहीं होगी। यहाँ पर एनालॉग इनपुट का बटन है, एनालॉग आउटपुट का बटन है और यूएसबी कनेक्शन है। यूएसबी कनेक्शन किस लिए है? इसलिए ताकि मैं इसको अटैच कर सकूं अपने पीसी से। यहाँ से मैंने वायर जो है वो अटैच की हुई है बेसिकली
और यूएसबी के थ्रू अपने कंप्यूटर से। ओके, उसके बाद हम लोग जो हैं यहाँ से बेसिकली मैंने पीछे से बटन ऑन किया हुआ था पावर वाला, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये स्विच जो ऑन है, इट मीन्स ये MP36 की जो डिवाइस है ना ये ऑन स्टेट में है। अगर ये ऑन नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिवाइस जो है वो ऑन नहीं है। अब इसको फिक्स कैसे करना है, बेसिकली ये सेंसर जो है ना वो कुछ इस तरह का है, इसको आपने ना ओपन करके यूं अटैच करना है, ठीक है, यूं है। इसको फिर हम लोग जो है ना फिक्स आउट करेंगे इस तरह से। अब इन सेंसर जो है हमारा EEG सेंसर, इसके साथ लगाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रोड्स बेसिकली इनका नाम है EL5003 और ये भी बायोपैक कंपनी देती है, सही है, इस फॉर्म में। तो हमारे पास ये 3 इलेक्ट्रोड्स हैं इन तीनों लीड्स पर लगाने के लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। इन तीनों लीड्स पर हम लोग जो है ये वाले इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे और इन इलेक्ट्रोड्स को हम लोग अपने जो ब्रेन है उससे अटैच करेंगे। देन यहाँ पर हमारे पास ये जेल अवेलेबल है, ये जेल जो है वो इलेक्ट्रोड जेल है, इसका नाम है आपके पास अब्रेसिव जेल भी इसको कह रहे होते हैं। तो इसका पर्पस ये है कि ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं समटाइम्स ये ड्राई हुए होते हैं, तो इनको वेट करने के लिए हम लोग ये थोड़ी सी जेल जो है वो इसके ऊपर लगा देते हैं, तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रोड जो है वो थोड़े से वेट स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। देन अब मेरे पास ये अवेलेबल है अल्कोहल प्रिपरेशन पैड वाइप्स। ये बेसिकली आपकी जिस सरफेस पर आपने इलेक्ट्रोड्स अटैच करने होते हैं उसको साफ करने के लिए होती है, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम लोग ब्रेन पे लगा रहे हैं, वहाँ पर हमारे बाल वगैरह होते हैं, तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, ये एक ऑप्शनल जो है वो स्टेप है, ठीक है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो वाइप ऑफ करना चाहते हैं मटीरियल को तो आप कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है ये एक एडहेसिव टेप है जिससे हमने इलेक्ट्रोड्स अपने ब्रेन पर अटैच कर दिए हैं, अब उसको अपने वहां पे फिक्स आउट करना है। तो हम लोग पूरी टेप जो है अपने सर पर जो है वो दोबारा से अटैच कर देंगे ताकि वो इलेक्ट्रोड्स जो मैंने अटैच किए हैं वो फिक्स आउट हो जाए, ठीक है। उसके बाद करने के लिए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अब ये डिवाइस मेरी ऑन है, जब मेरी ऑन होगी डिवाइस तब ही मेरा जो बायोपैक सॉफ्टवेयर है वो ऑन होगा, अदरवाइज मेरा बायोपैक जो सॉफ्टवेयर है वो ऑन नहीं हो सकता, ठीक है। ये मेरा बायोपैक सॉफ्टवेयर है, इसको मैं डबल क्लिक करती हूँ। आज की जो हमारी लैब है वो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी 2 लैब नंबर 4, इस पर मैं क्लिक करती हूँ, इसको कोई भी नाम दे दूंगी EEG 2, ओके। मैंने ऑलरेडी इसको एक फाइल जनरेट की हुई है, तो उसको कह रहा है कि यूज इसको करो, आप न्यू फोल्डर बना लो। हम उसका न्यू फोल्डर बना लेते हैं और नाम दे देते हैं EEG इस फॉर्म में 2, ओके। अब ये मेरा सेटअप जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड्स जो है वो ब्रेन से अटैच करना है। कंडीशन में जो है वो अटैच करेंगे लीड्स को। इलेक्ट्रोड्स मैंने तीनों लगा दिए हैं और तीनों लीड्स जो हैं वो ब्लैक, रेड और वाइट जो है वो अटैच हुई हैं, जो कि बेसिकली आपके सेंसर की हैं, जो कि हमने सेंसर से यहाँ पर अटैच की थी। अब हम यहाँ बायोपैक पर आ गए हैं। बायोपैक का सॉफ्टवेयर जो है वो मेरे पास ओपन हुआ हुआ है। तो सबसे पहले हमने चेक कर लेना है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड सेट है वो कनेक्टेड है या नहीं। तो इलेक्ट्रोड सेट जो है वो कनेक्टेड है हमारी डिवाइस से, ठीक है। उसके बाद हमने चेकआउट करना है कि हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो पर्टिकुलर पोजीशन पर जो है वो लगे हुए हैं या नहीं। तो वो हमने अभी यहाँ पर आपने देखा है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ब्लैक लीड्स जो है वो हमने अटैच कर दिया। न्यूट्रल जो लीड है आपकी ग्राउंड ब्लॉक वो अटैच कर दिया, ठीक है। अब इसकी 2 सिचुएशंस हैं जिसमें आपने अल्फा जो वेव्स हैं उनको एनालाइज करना है। पहली जो है उसके अंदर आपने आईज को क्लोज करना है, मीन्स रिलैक्सिंग स्टेज होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज पर चले जाएं। नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहे हैं कैलिब्रेट करो सेंसर को। सेंसर को अपनी एक्चुअल पोजीशन पे लाने के लिए हम लोग कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट पे क्लिक किया मैंने तो मेरे पास इस तरह की वेव आ रही है जो कि बेसिकली 0 एक्सिस पे लाई करी है, आप देख सकते हैं। ये कैलिब्रेट होने के बाद मेरे पास वेव आ गई है जो 0 एक्सिस पे है, इट मीन्स ओके है कैलिब्रेशन, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगी। और अब मेरे पास जो वेव्स आ चुकी हैं वो है बेसिकली ECG और अल्फा RMS, ठीक है। ये सारी वेव्स हैं और किस फॉर्म में, ये माइक्रोवोल्ट की फॉर्म में।
तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरी वेव्स आ जाएंगे। आईज आप देखेंगे, आपका जो ह्यूमन है वो क्लोज करेगा, आईज बंद करेगा। जैसे आईज बंद करेगा और रिलैक्सिंग सिचुएशन के अंदर है तो आपकी इस काइंड तरह की वेव आ सो मेंटल अरिथमेटिक से एसोसिएट करते हुए जो हमने हार्डवेयर से कैप्चर की है सॉफ्टवेयर पर आउटपुट, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो इस स्लाइड में आप व्यू कर सकते हैं। In this slide, we have the results of the EEG waveforms like alpha waves, alpha RMS waves in the condition or after the condition of hyperventilation. From this lab, we have learned about the level of alpha rhythm activity during mental arithmetic and hyperventilation compared to the control condition of eye closed and relaxed. Task assigned for this experimentation is listed in this slide. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck and Allah Hafiz.